Hello everyone, this is the second lecture from the topic differentiability. In the first video, we have seen this differentiability represents basically the smoothness of a curve, you know, and it is with the help of limiting value concept. तो हमने एक mathematical model भी पढ़ा था कि if the left hand derivative is same as the right hand derivative and both are finite, then we will say कि वो function at that given point is smooth and we can take the derivative of that graph. Okay, so if you want to access all my free classes and PDF notes, then you can check the description of this video. देखो मेरे हिसाब से आपको खुद का नोट्स मतलब बनाना नहीं है या फिर बना भी सकते हो और यू कैन हैव द डिजिटल नोट्स हियर पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में just go and check. So okay, today in this video I will be starting with some very important notes. Note number 1. So if a function is differentiable at a given point, then it is continuous. A function is differentiable. A function is differentiable, then it is continuous. Okay, and it is obvious. देखो वो फंक्शन को स्मूथ बनना है ऐसे and it is only possible when it is continuous. There is no break on the graph. But the converse is not true. But the converse is not true. Okay. मतलब you are given a function and if someone says that function is differentiable, then ultimately it is continuous also. But if someone says a function is continuous, तो हम मतलब बिना देखे बता नहीं सकते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं. वी हैव टू चेक. ठीक है. सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not same as right hand derivative but both are finite, तब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो मतलब वो नहीं होगा बट कंटिन्यूस होगा. देन नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूस. नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूस. जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा f of x equals to modulus of x. Everyone knows the graph of this thing. Okay, ये सबको पता है. तो ग्राफ कैसा दिखता है? It graphs. This one is the graph. It's kind of V-shaped graph, है ना? ये V-shaped graph है at this point 0. So I am saying that this modulus function is not differentiable at x equals to 0. Why? Because if you take any point which is very near to this 0 वाला point, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट पे इफ यू टेक द टेंजेंट, सो एक टेंजेंट क्या होगा? सो देखो ये एक लाइन है बेसिकली, तो उस लाइन का टेंजेंट वो खुद लाइन होता है. ठीक है. यू आर टेकिंग ए पॉइंट ऑन द लाइन एंड उस लाइन पे टेंजेंट बनाना चाहते हो तो वो टेंजेंट वो खुद लाइन होगा. तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? वो लाइन का स्लोप. इस लाइन का स्लोप है -1 आ रहा है. And similarly, if you take another point which is on the right hand side to this point and it is very near to this 0 वाला point, तो इस point पे भी if you draw any tangent, तो उस tangent का slope होगा, slope of this line, that is 1. Okay. That means at this point x equals to 0, we are confused
कि इसका जो स्लोप है वो -1 होगा या +1 होगा. That means it doesn't have any specific slope value. So we will say कि this function is not differentiable at x equals to 0. और वैसे भी आप यहाँ से भी देख सकते हो कि this graph is not smooth. ये ऐसे कॉर्नर आ रहा है, ऐसे कॉर्नर. ठीक है. That means it instantly changes its direction. ठीक है. तो this is not differentiable at x equals to 0. तो इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग वैल्यू कॉन्सेप्ट. और वही है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एज वेल एज राइट हैंड डेरिवेटिव. ठीक. तो ये तो आपने देख लिया ग्राफिकली ऐसा हो रहा है. अब इसी चीज़ को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला देखो. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कैन यू फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हियर? तो उससे पहले हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं. एवरीवन नोज दिस फंक्शन ओपन्स इन टू डिफरेंट डेफिनेशन. वन इज -x एंड अनदर वन इज +x. -1 कब होगा, मतलब -x कब होगा? व्हेन x इज लेस देन 0. इक्वल साइन कहीं पे भी लगा दो. एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. सो दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हियर एट x इक्वल्स टू 0. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या था? वो फॉर्मूला क्या था? h टेंड्स टू 0. द फॉर्मूला इज, सपोज एट पॉइंट x यू हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो फॉर्मूला कहता है f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय -x. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है. ये आई गेस सबको याद है. ठीक. तो इसमें देखो, वी आर इंटरेस्टेड टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट. तो x यहाँ पे 0 रख दो बस. दिस इज 0, दिस इज 0. अब बस इस फंक्शन के साथ खेलना है. दिस इज, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ. लिमिट h टेंड्स टू 0. दिस इज -h. f ऑफ -h कितना होगा? देखो, नाउ द इनपुट इज नेगेटिव. Why negative? Because you know h is an infinitesimally small positive number. So 0 minus h will be minus h. h is positive, minus h will be negative. That means function का जो input है, that input is coming out to be negative. If input is negative, which definition will open? This definition. Okay? तो ये definition क्या कहता है कि function के अंदर अगर input x जाएगा तो उसको बाहर निकाल दो एज एन आउटपुट, बट पुटिंग ए एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन. ठीक. एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन के साथ इनपुट को एज एन आउटपुट मतलब वो डिक्लेयर कर दो बेसिकली. तो ये जो इनपुट है, दिस इनपुट इज -h. तो माइनस, एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया. और इनपुट क्या था? x. इसमें इनपुट -h, तो माइनस ऑफ -h. देखो, वेरी केयरफुल. हाँ, ठीक है. This is minus, this minus is this minus, and f of 0 will be which definition? ये होगा f of 0, 0 आएगा. f of 0 will be 0. ठीक. तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया. तो सिंपल लिमिट h टेंड्स टू 0. यहाँ पे आपके पास बचा -1. नाउ यू कैन पुट h इज इक्वल्स टू 0 हियर, बट देयर इज नो h. सिंपल -1 आ गया. ये बात समझ में आई? ठीक है. Now we will find right hand derivative. Limit h tends to 0. देखो फॉर्मूला क्या था? नीचे है h, on the top you have x plus h minus f of x. So this is the basic formula for right hand derivative. And our point of interest is x is equals to 0. x का वैल्यू 0 रख दिया मैंने. Now f of 0 plus h, as you know h is an infinitesimally small but positive number, so input is coming as positive. देखो f के अंदर इनपुट आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो ये वाला डेफिनेशन खुलेगा. ये वाला डेफिनेशन क्या कहता है? जो भी इनपुट है उसी को ही आउटपुट डिक्लेयर कर दो, सेम एज इट इज. इसमें इनपुट है h, तो आउटपुट भी होगा h माइनस f of 0. f of 0 के लिए ये वाला डेफिनेशन खुलेगा. इसमें भी 0 रख दो, -0 इज 0. h कैंसिल हो गया, तो इसमें 1 आएगा आंसर. ठीक है. दिस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर फाइनाइट, बट दीज आर डिफरेंट. एज यू कैन सी यहाँ पे भी इसमें स्लोप का वैल्यू आया -1, इसमें स्लोप का वैल्यू आया +1.
So left hand limit and right hand limit both are different. It's not same as this is derivative. Huh? Left hand derivative. Sorry. Left hand derivative and right hand derivative both are different but finite. Both are finite. तो ये क्या होगा? Not differentiable. This is not differentiable but continuous. ठीक है. This is not differentiable but continuous. Continuous कैसे आप यहाँ से भी देख सकते हो. ठीक. So this is the graph. This graph is continuous at x equals to 0. Okay, so this is a very basic example for this note number 2. ठीक है. तो नोट 2 क्या कहता है कि अगर वो फंक्शन is not differentiable but both the left hand derivative and right hand derivative are finite, then we will say कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा. ठीक है, इसको याद रखना है. तो फर्स्ट नोट क्या कहता है कि इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए गिवन पॉइंट देन इट इज ऑब्वियसली कंटिन्यूस फॉर श्योर. सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर फाइनाइट then the function is continuous. Okay. And third point is what, if any of left hand derivative or right hand derivative, if any of LHD or RHD becomes infinite, becomes infinite, then not differentiable. Then not differentiable. But we cannot comment. We cannot comment on its continuity. We have to check. ठीक है. अगर एक भी इंफिनिटी आ गया LHD और RHD, we cannot comment on its continuity. So वो आपको चेक करना होगा. ठीक. So this is the theory part. Now we can quickly jump into the question solving session. देखो, our first question. Comment on differentiability. And continuity of the function. Function क्या है? The function is given as f of x. It has two different definitions. One is x and another is x square. When x is less than 1 and when x is greater than or equals to 1 at x is equals to 1. आपको सिर्फ इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी भी चेक करना है एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है. कैन यू टेल मी व्हिच वन शुड आई चेक फर्स्ट? पहले कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए या फिर मतलब वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहिए? देखो, तो आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज चेक डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट, बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी से आपको कंटिन्यूटी का एक आइडिया मिल जाता है बट कंटिन्यूटी से आपको डिफरेंशिएबिलिटी का आइडिया नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए गो विथ डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट. ओके, तो हम लोग इसमें बहुत सारे मतलब वो मेथड्स देखेंगे बेसिकली. ठीक है, तो सबसे पहले आई वांट टू शो यू द ग्राफ ऑफ दिस एंटर फंक्शन. यस, यू कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, आप इसका ग्राफ बना सकते हो. ग्राफ बनाओ. दिस इज y एक्सिस and this is your x axis.
Our point of interest is 1. Okay, देखो, the first one is देखो, when x is less than 1, then the definition is y equals to x line. Y equals to x is a very common graph. So this is y equals to x line. So you have to consider only this portion, yeah? because because this is for x is less than 1. यहाँ पे आएगा ओपन, क्योंकि 1 पे ओपन, यहाँ से ये हो जाएगा. So this is your y equals to x वाला line. Now you have to draw this graph y equals to x square. X square is a parabola. So this is the parabola, well-known parabola, सबको पता है. So you have to consider only this portion because this is x is greater than or equals to 1. ठीक है, तो 1 पुट करो, एग्जैक्ट 1 आ रहा है, तो इसमें ओपन हट के क्लोज हो जाएगा ये. ठीक है, ठीक है, क्लोज हो जाएगा और यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाएगा. So this is the entire graph of this piecewise function. So suppose I am representing this point as a. तो आपको इस a पॉइंट पे बेसिकली चेक करना है द डिफरेंशिएबिलिटी एज वेल एज द कंटिन्यूटी. So let's go with the differentiability first. देखो, जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ कैन यू टेल मी कि इस पॉइंट पे क्या ये जो कनेक्शन है बेसिकली, क्या वो कनेक्शन स्मूथ है, क्या ये स्मूथ ट्रांजिशन है यहाँ से यहाँ तक. तो यू कैन नॉट डायरेक्टली कॉमेंट ना, है ना, क्योंकि ये एक डिफरेंट ग्राफ है, ये एक डिफरेंट ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक कर्व लाइन है. तो इसमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहाँ पे ये स्मूथ है या नहीं, वो जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ इट इज इम्पॉसिबल टू से. Okay, so we have to go with the formulas. So just find left hand derivative at x equals to 1. इस a point पे left hand derivative देखो, limit h tends to 0. The formula says f of x minus h, x is 1 minus h, so minus f of 1 divided by minus h. ठीक है, so this is the formula you have to apply for left hand derivative. Limit h tends to 0. On the denominator you have minus h, and ऊपर क्या है आपके पास f of 1 minus h. So h is an infinitesimally small positive number, so 1 minus h will be slightly less than 1. So input is less than 1. So first definition will open. First definition क्या कहता है, जो भी input है वही output है, same. तो this is the input 1 minus h, the output भी 1 minus h ही होगा. ठीक है, माइनस एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 1 में क्या है, इनपुट इज 1, तो इनपुट 1 यहाँ पे आए हैं, है ना, x इज इक्वल्स टू 1 है. तो दिस डेफिनेशन विल ओपन. इस डेफिनेशन में क्या है, जो भी इनपुट है उसको स्क्वायर करके आउटपुट बना दो. तो इनपुट इज 1, तो आउटपुट होगा माइनस वो 1 स्क्वायर. ठीक है, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 1 बचेगा. नाउ पुट h इज इक्वल्स टू 0 ईयर, बट h है ही नहीं, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 1. एंड कोई मुझे ये बता सकता है कि वो ये 1 है क्या. दिस 1 इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस पॉइंट. इस ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड में एक और पॉइंट ले लो एकदम करीब. सपोज दिस पॉइंट इज वेरी नियर टू दिस पॉइंट ए, एंड इफ यू ट्राई टू ड्रॉ ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो वो बेसिकली क्या आएगा, वो टेंजेंट विल बी सेम एज दिस लाइन बिकॉज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद लाइन होता है, तो उस लाइन का स्लोप क्या है, दिस लाइन का स्लोप है 1, इसलिए 1 आ गया. ठीक है, सिमिलरली वी वांट टू फाइंड द राइट हैंड डेरिवेटिव आल्सो. दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0. ऑन द टॉप यू हैव टू राइट द फॉर्मूला x प्लस h, x का मतलब है 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई प्लस h. मैं ये फाइंड करो क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0
देखो ये नीचे h है, और माइनस ये एफ ऑफ वन का वैल्यू हमने निकाला था अभी, वन स्क्वायर आ गया था, और एफ ऑफ वन प्लस एच, यू जस्ट हैव टू फाइंड एफ ऑफ वन प्लस एच। नाउ द इनपुट इज मोर देन वन, सो सेकेंड डेफिनेशन मिला आपने। सेकेंड डेफिनेशन क्या कहता है, जो भी इनपुट है उसको स्क्वायर कर दो। इनपुट इज वन प्लस एच, तो आउटपुट विल बी वन प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब इसमें लगाओ लिमिट का कॉन्सेप्ट। ना यू कैनॉट डायरेक्टली पुट एच इज इक्वल्स टू जीरो हियर, बिकॉज दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जीरो बाई जीरो हो जाएगा ना, आप डायरेक्टली पुट करोगे तो एच का। तो अब क्या करोगे, इसको ओपन करो, एक्सपैंड करो, वन प्लस एच होल स्क्वायर, तो वन स्क्वायर प्लस टू एच प्लस एच स्क्वायर, वन वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू एच प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। अब एच को कैंसिल आउट कर दो, तो टू प्लस एच बचेगा ना, टू प्लस एच बचेगा। Now you can easily put x is equals to 0 here because there is no indeterminacy. So the answer is 2. And can you tell me what is this 2 value? This 2 value is nothing but the slope of a tangent. कौन सा टेंजेंट? ये a पॉइंट के आसपास, मतलब on the right hand side, very near to this point a, just take a point और उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, एंड ये जो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस पे कट करेगा और एक थीटा एंगल बनाएगा, तो इसका टेन थीटा ले लो, मतलब टेन थीटा बनाओ, तो टेन थीटा इज कमिंग आउट टू बी टू। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बेसिकली दिस इज द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, एंड दिस टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, एज यू कैन सी बोथ द स्लोप वैल्यूज आर डिफरेंट। तो इस ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड में एक स्लोप, मतलब वो बनाओ, टेंजेंट बनाओ, उस टेंजेंट का स्लोप आ रहा है वन, एंड राइट हैंड साइड में एक टेंजेंट बनाओ, उस टेंजेंट का स्लोप आ रहा है टू। दैट मीन्स एट दिस पॉइंट ए, इस ग्राफ का वो डायरेक्शन इंस्टेंटली चेंज हो गया फ्रॉम वन टू टू। इट्स नॉट ए स्मूथ ट्रांजिशन, सो वी कैन से कि ये वाला ग्राफ स्मूथ नहीं, और वैसे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर डिफरेंट, तो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, not differentiable. But can you comment on continuity? Yes, just by looking at the graph also we can comment that this entire graph is continuous, है ना? There is no break, this graph is continuous. But also from the note number 2 we have learned, note number 2, if left hand derivative and right hand derivative are not equal but both are finite, तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूस। कहाँ पे, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। So I want to show you one more method. That method is relatively easy. Method number 2. देखो एक और मेथड देखो, आपको सबसे पहले फंक्शन लिख लेना है। फंक्शन इज गिवन एज एक्स एंड नीचे है एक्स स्क्वायर, एंड एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। यू हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू वन। तो अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी पता लगाना है तो आप क्या करो, देखो इंडिविजुअली ये दोनों ग्राफ को देखो, एक्स एंड एक्स स्क्वायर, इस पूरे फंक्शन को मत देखो, जस्ट लुक एट दिस टू ग्राफ्स इंडिविजुअली। ये एक्स वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, यस दिस इज डिफरेंशिएबल, दिस इज एन क्या, ये आपका एक क्या है, लीनियर फंक्शन है, ये लाइन है, सो यस दिस इज डिफरेंशिएबल। एक्स स्क्वायर का भी हमको वो पता है डिफरेंशिएबल, दिस इज स्मूथ ग्राफ, these two graphs are smooth graph, so yes these are differentiable. So if these are differentiable, take the derivative, this is f dash of x, first derivative, x का derivative 1 है, 2x का derivative x स्क्वायर का derivative है 2x, कहाँ पे, when x is less than 1 and x is greater than 1। तो ये जो आपको नया फंक्शन मिला, ये है इस फंक्शन का डेरिवेटिव का फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव वाला फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको डायरेक्टली स्लोप मिल जाएगा, तो दिस इज स्लोप वाला फंक्शन बोल सकते हो।
देखो, from here at x equals to 1 you can find the left hand derivative directly without using the formula. कैसे? क्योंकि ये जो फंक्शन है, दिस इज द स्लोप ऑफ, मतलब ये बेसिकली स्लोप का फंक्शन है। तो इसमें आप देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आपको चाहिए तो जस्ट पुट विच एक्स इज इक्वल्स टू 1 हियर। तो इसमें एक्स का वैल्यू नहीं है तो सिंपल 1 आएगा। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये बेसिकली होता है स्लोप, और ये है स्लोप का फंक्शन, स्लोप वाला फंक्शन। तो इसमें भी अगर आपको चाहिए ये राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स एक्स इज मोर देन 1, तो ये वाला डेफिनेशन आएगा, और इस डेफिनेशन में एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दो तो 2 आ रहा है। इसमें भी हमने 1 का वैल्यू पुट करके देखा तो क्या आ रहा है, मतलब बेसिकली 1, मतलब इसमें एक्स तो है नहीं तो इसलिए 1 आ गया था। ठीक, सो एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 1 यू कैन फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दिस वे। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी सिंपलर वे। तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल गया 1, राइट हैंड डेरिवेटिव मिल गया 2। सो both are not same but finite, so we will say that function is not differentiable but continuous at x equals to 1। ठीक है, समझ में आ गया? hope this is clear। Question number 2, the function is given as box of twice x plus x when x is less than 1, and fractional part of x plus 1 when x is greater than or equals to 1। at x equals to 1 you have to check both differentiability and continuity। सेम, अगर आपको इसका ग्राफ बनाने आता है तो यस, गो विद द ग्राफ। ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला यूज करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 1 लिमिट एच टेंस टू 0। फॉर्मूला में बस बैठा दो। फॉर्मूला क्या है? नीचे माइनस एच, ऊपर एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एक्स है 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स मीन्स 1। बस अब फंक्शन के साथ खेलना है, सिंपल। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या आएगा? देखो, f of 1 minus h, now the input is minus input is 1 minus h, input is 1 minus h। ठीक है, तो 1 minus h will be less than 1, लेस देन 1 होगा तो ये वाला डेफिनेशन खुलेगा। इस डेफिनेशन में जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लिखेंगे 1 minus h। बॉक्स के अंदर देखो, वेरी केयरफुल, बॉक्स के अंदर यू हैव टू राइट 2 into 1 minus h प्लस जहाँ पे x है वहाँ पे 1 minus h। ठीक है, सो दिस इज योर f of 1 minus h only, माइनस f of 1 भी लिखना है आपको। f of 1 के लिए इनपुट इज 1 तो ये वाला डेफिनेशन खुलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लिखोगे डायरेक्टली, प्लस। ठीक, समझ में आ गया? एंड ऑन द डिनोमिनेटर यू हैव माइनस h ऑन। ठीक है, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो, बॉक्स के अंदर है 2 माइनस 2h, है ना? 2 माइनस 2h हो जाएगा, 2 माइनस 2h। h is an infinitesimally small positive number, तो 2 minus 2h will be slightly less than 2। लेस देन 2 का वैल्यू, मतलब लेस देन 2 का बॉक्स होता है 1, का बॉक्स होगा 1 प्लस 1 माइनस h माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 का वैल्यू होगा 0, तो 0 प्लस 1 इज 1, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस को बाहर ले लिया, माइनस नीचे है 1 h, 1 1 माइनस h। ठीक है, नाउ
पुट h इज इक्वल्स टू 0 ईयर। क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? -1 -0/0 -1/0 आ रहा है, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नो, दिस इज नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। यू कैन डायरेक्टली पुट h इज इक्वल्स टू 0 ईयर। 0 पुट करो तो क्या है? -1 -0/0, तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, तो यस दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट इन बोर्ड एग्जाम आगे आ जाए लिमिट h टेंड्स टू 0, once again you have to use the formula 1 plus h minus f of 1 divided by plus h। ठीक है, इसमें ये यूज करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h, which definition? The input is more than 1, so this second definition will happen, fractional part of x plus 1, so fractional part of input plus 1, fractional part of input आएगा 1 plus h plus 1 minus f of 1 is, f of 1 क्या है भाई? सेम आएगा, fractional part of 1 plus 1, fractional part of 1 divided by h, limit h tends to 0, 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 1 इज इंटीजर, तो h आएगा सिंपल, h इज द फ्रैक्शनल पार्ट है, h प्लस 1 माइनस दिस वैल्यू इज 0, -1 आएगा, डिवाइडेड बाई h आएगा, 1 1 कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, तो सिंपल 1 आएगा। ठीक, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर डिफरेंट, so left hand derivative is not same as right hand derivative, so this function is not differentiable, this function is not differentiable at x equals to 1। ठीक है, so can we comment on continuity? No, we cannot comment, because ये आपका थर्ड नोट में मतलब वो लिखा था कि अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो यू कैन नॉट कमेंट ऑन कंटिन्यूटी, यू हैव टू चेक डिफरेंटली। तो चेक करो, चेक फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी कैसे करोगे कंटिन्यूटी के लिए चेक? याद है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना होगा आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है? कहाँ पे? एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1, फंक्शन क्या था? इंट्रोड्यूसिंग h डायरेक्टली, h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या आएगा? 1 माइनस h आएगा। ठीक, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो h टेंड्स टू 0, फंक्शन का इनपुट जो है दैट इज 1 माइनस h, मीन्स लेस देन 1, तो फर्स्ट डेफिनेशन विल ओपन। फर्स्ट डेफिनेशन में क्या है? बॉक्स ऑफ ट्वाइस x प्लस x, तो बॉक्स ऑफ ट्वाइस x मतलब इनपुट प्लस x इनपुट। ठीक है, आगे इसको बस करना है, दिस इज 2 माइनस 2h, तो उस चीज़ का बॉक्स आएगा 1, क्योंकि 2 माइनस 2h इज स्लाइटली लेस देन 2, तो 1 आएगा उसका बॉक्स, एंड ये तो एग्जैक्टली 1 हो गया, एंड 1 माइनस h मतलब क्या हो जाएगा? h आप डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हो, या फिर ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 1 प्लस 1 माइनस h मतलब 2 माइनस h हो गया, h का वैल्यू 0 पुट कर दो तो 2 आ गया। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा, है ना? ये आपका लिमिट का चैप्टर का यूज है। h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h क्या हो गया? नाउ द इनपुट इज स्लाइटली मोर देन 1, तो सेकंड डेफिनेशन विल ओपन। सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इनपुट प्लस 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h का क्या होगा? h आएगा सिंपल, क्योंकि 1 इज एन इंटीजर, h प्लस 1 होगा, h का वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस 1 है आपके पास, h का वैल्यू 0 पुट कर दो तो 1 आ रहा है। So as you can see, this left hand limit, right hand limit both are different, but you don't forget f of 1 value। ठीक है, ये भी आपको फाइंड करना होता है कंटिन्यूटी में।
फंक्शन वैल्यू इट्सेल्फ, फंक्शन वैल्यू क्या आएगा, x is equals to 1, तो which definition, second definition, fractional part of input plus 1, तो fractional part of 1, fractional part of 1 का वैल्यू आएगा 0 to 1 आएगा. As you can see, left hand limit, right hand limit and function value same नहीं है, that means left hand limit is not same as right hand limit. ठीक है, ठीक, function value तो discontinuous. Discontinuous at x equals to 1. Okay, so this is how you approach a question. अब सबसे पहले फाइंड करो डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद कंटिन्यूटी. ठीक है, one more question I am taking. The function is given as box of cos pi x when x is less than or equals to 1 and 2 fractional part of x minus 1, x is greater than 1 at x equals to 1. So you have to tell the nature of differentiability as well as continuity. तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, तो उसका ग्राफ बना सकते हो, बट यस यू शुड गो विथ द फॉर्मूला. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, h टेंड्स टू 0, क्या था फॉर्मूला वाज f of x minus h, x is 1 minus h minus f of 1 divided by minus h, limit h tends to 0. Now input is, देखो इसको देखो, इनपुट इज 1 माइनस एच लेस देन 1 है ना, इनपुट इज लेस देन 1, तो फर्स्ट डेफिनेशन विल ओपन, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस एच का बॉक्स, हो गया, माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 के लिए वही फर्स्ट डेफिनेशन आएगा, कॉस ऑफ क्या आएगा, कॉस पाई इंटू 1, तो कॉस पाई डिवाइडेड बाई माइनस एच. अब देखो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, तो -1 का बॉक्स कितना होगा, -1. ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, तो ये क्या होगा, इसको देखो, दिस इज cos pi minus pi h. Cos pi minus pi h will be, pi minus pi h is lying in second quadrant, तो second quadrant में cos का वैल्यू होता है नेगेटिव, तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos माइनस cos pi h हो जाएगा, माइनस cos pi, और इसका चाहिए आपको बॉक्स, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो cos का है ग्राफ देख लो थोड़ा, सबको पता है cos का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, तो पाई एच कहाँ पे लाई कर रहा है, देखो h is an infinitesimally small positive number, तो pi h is also approaching to 0, because h is approaching to 0, pi h is also approaching to 0, तो pi h का है थोड़ा यहाँ पे होगा. ठीक है, तो 0 पे, एग्जैक्ट 0 पे cos का वैल्यू होता है 1, पाई h पे जो वैल्यू आएगा डेट विल बी स्लाइटली लेस देन 1, है ना, तो cos pi h का जो वैल्यू है डेट इज स्लाइटली लेस देन 1. सपोज आई एम एज्यूमिंग cos pi h का वैल्यू हो, सपोज है 0.999, सपोज 0.998 सपोज, और उसके सामने लगा दिया एक माइनस साइन, तो माइनस 0.999 उसका बॉक्स क्या होगा, -1 होगा. दैट मीन्स ये जो है पूरा इसका -1 आ रहा है, -1 माइनस यहाँ पे फिर से -1, समझ में आ रहा है, देखो
Now it is very important. Is very important. लिमिट h टेंस टू जीरो, हमने बस सिंप्लीफाई किया है इसमें। ऊपर आपके पास आ रहा है जीरो, नीचे आपके पास आ रहा है माइनस एच। क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? देखो वेरी केयरफुल, दिस इज योर एग्जैक्ट जीरो, ऑन द टॉप यू हैव एग्जैक्ट जीरो। इसमें हमने h अभी तक पुट नहीं किया जीरो, अभी तक हमने h का वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट नहीं किया, ठीक है। तो आपको बिना पुट करे ऊपर आपको जीरो मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज एग्जैक्ट जीरो and this is non-zero because h is not exactly zero, h is approaching to zero, तो zero by non-zero will be what? Zero only। तो अभी तक हमने h का वैल्यू जीरो पुट नहीं किया, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट जीरो आ गया। अभी पुट करो h का वैल्यू जीरो, लेकिन अभी तो h है ही नहीं, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू आ गया। You have to be very careful. So this is left hand derivative. Now find right hand derivative. Same process. H tends to 0. The formula is f of x plus x is 1 minus f of x means f of 1 divided by plus h. This is limit h tends to 0. This is h. F of 1 plus h, which definition? Second definition. So 2 into fractional part of x minus 1. तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 into fractional part of x means input minus 1, ठीक है, माइनस f of 1, f of 1 अभी हमने निकाला था, f of 1 is box of cos pi, box of cos, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है देखो, बस सिंप्लीफाई करो इसको, लिमिट h टेंस टू 0, ऑन द टॉप यू हैव 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा h बिकॉज 1 इज एन इंटीजर, तो ये 2h हो जाएगा, 2h माइनस 1 माइनस कॉस पाई का वैल्यू होता है माइनस वन का बॉक्स होगा माइनस वन ओनली, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, यस, एंड नीचे आपके पास h, ठीक है। 1 1 कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, अब इसमें अंदर आया ओनली 2। नाउ पुट h इज इक्वल्स टू 0 हियर, बट h तो है ही नहीं, तो सिंपल 2 आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी find left hand limit, left hand derivative and right hand derivative, but both are seems to be very different. One is 0 and another one is 2. So left hand derivative is not same as right hand derivative, but both are finite, both are finite value 0 and 2. So our conclusion is not differentiable but continuous, not differentiable but continuous। कहाँ पे? एट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है, वही हमने चेक किया था, एट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन समझ में आया कि नहीं, एंड वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस and which we will try to cover in our upcoming sessions. With this, I am ending of this session here. Thank you.